Good morning, everyone. Today I'm going to start with the next chapter, straight lines. And after straight line, we are going to cover with limits. As already mentioned, we are not going to cover stats as such. Only the basic idea which is important that we are going to cover in 12th itself. Because the time is quite limited and lot many things are to be covered. Straight lines and limits both are very important from class 11 point of view. So let's begin with the straight line. Before I begin with that, just the basic introduction about the coordinate geometry and algebra. They were mixed together by R. Descartes in 1637, and then it referred to as a coordinate geometry. You have a distance formula. If 2 points are Px1, y1 and Qx2, y2, then PQ is given by this formula. Please check out the direct one solved example. Then we did talk about the section formula, the internal division, the coordinates of the point dividing the line segment joining the point x1, y1 और internally बात हो रही है. तो please remember, if you have, say there is a point A, x1, y1 and there is a point B, x2, y2, recall if there is a point C, xy which divides the join in the ratio of m is to n, then how we write the coordinates? X coordinate पे focus किया and multiply it with a far away ratio. X वाले को far away ratio से multiply and that will give me C के coordinate क्या हो जाएगा यहाँ से m x2 far away ratio से हो गया plus n x1 and then divided by sum of ratio. Similarly, once this is done, फिर हम फोकस करते हैं y वाले पार्ट पे. y को भी सेम वे फार अवे रेशियो से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो. सो दिस इज योर सेक्शन फॉर्मूला. Quick example for your reference. Check this out. In particular, the deduction, if m is equal to n, we are talking about the midpoint formula. So remember, ये direct formula हो जाता है. And then we did talk about the area of a triangle whose vertices are given. It is possible that since it was in a reduced curriculum for class 10th for you in the last session, so आपने इसे ना किया हो, but most of you might have done it. नहीं भी किया कोई दिक्कत नहीं है, अब कर लीजिए. So area of a triangle. A triangle is given to you whose 3 vertices are given. So there is any triangle whose vertices are known to me as x1, y1, x2, y2 and x3, y3. And how we are going to find the area of this triangle? For that we have a direct formula. फॉर्मूला को ध्यान से देखिए. हाफ ऑफ, ये मॉड लगाया है. मॉड का मतलब पॉजिटिव वैल्यूज ही आएंगी because area cannot be negative. Sometimes what is going to happen while you are solving it, solve करते हुए हो सकते हैं आंसर नेगेटिव में आ जाए. So you just change that into positive value. And area है तो स्क्वायर यूनिट्स ऑब्वियसली आएगा. लर्न कैसे करेंगे? लुक एट द सिमेट्री. x1 और फिर ये x1 देखिए किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. x1 जब मैंने लिया तो x1 आई स्टार्ट फ्रॉम दिस और फिर इसके बाद साइक्लिक ऑर्डर में चलिए लाइक दिस इन अ साइक्लिक ऑर्डर और फिर y वाले कोऑर्डिनेट बाद वाले माइनस कर दो y2 माइनस y3.
देन इट इज अ टर्म ऑफ x2, सेकेंड वाला ये x2 आ गया, फिर साइक्लिक में ही y3 माइनस y1, और फिर साइक्लिक में x3 की जब टर्न आ गई, साइक्लिक में चल रहे थे अब x3 पर आ गए, फिर साइक्लिक में y1 माइनस y2. Look at the direct application, everyone. I hope the idea is clear. आंसर नेगेटिव आ रहा था इसीलिए पॉजिटिव में, बट एज मेंशन ये साथ में स्क्वायर यूनिट्स बिल्कुल लिखना है. तो आई एम नॉट सॉल्विंग और कंसिडरिंग दीज क्वेश्चंस, 10th में करे हुए हैं. डिस्टेंस फार्मूला से कह रहे हैं इन पॉइंट्स को जस्टिफाई करो, दे आर कॉलिनियर. तो रिकॉल, अगर मुझे पॉइंट्स को कॉलिनियर दिखाना है तो ए बी प्लस हाँ, आप ए बी बी सी और ए सी निकाल दो, राइट. और फिर क्या, सम ऑफ एनी टू should be equal to AC. और ए बी प्लस ए सी, बी सी भी आ सकता है. क्यों? क्योंकि हमने ऐसे डायग्राम बना लिया और एज्यूम कर लिया कि ये बिल्कुल ऑर्डर में है. हो सकता है एग्जामिनर ने पॉइंट्स तो लिखे हो ए बी सी, बट कॉलिनियर का ऑर्डरिंग कुछ ऐसा रह रहा हो. तब क्या होगा, ए सी प्लस सी बी, वो आना चाहिए ए बी. सो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड get all the three lengths using distance formula and check the sum of any two, क्या वो थर्ड के इक्वल आ रहा है. if yes, the points are collinear. the other alternative way is, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, आप ट्राइंगल का एरिया निकाल दो, और अगर उस ट्राइंगल का एरिया 0 आ गया मीन्स वो फिगर ही पॉसिबल नहीं है, वो ट्राइंगल बना ही नहीं. और ये तभी पॉसिबल है जब तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर होंगे. सो दिस इज द ऑल्टरनेटिव मेथड. इन 11th आई विल लर्न अबाउट न्यू मेथड्स, न्यू अप्रोचेस ऑल्सो, और वो थोड़ी इजी हो सकती हैं जब हमें पॉइंट्स को कॉलिनियर शो करना होगा. when I am going to introduce the idea of slope of a line. तो अभी तो मैं क्विक रिकॉल कर रहा हूँ 10th क्लास का. फिर याद करिए, किसी ट्राइंगल को अगर मुझे मान लीजिए दिखाना है इक्विलेटरल, तो आप बस वही वर्टिसेस गिवन होंगी, तीनों लेंथ निकाल दो. इफ 3 sides are equal, equilateral. if any 2 sides are equal, isosceles. if no side equal, then it is scalene triangle. किसी ट्राइंगल को राइट ट्राइंगल दिखाना है तो राइट ट्राइंगल में याद रखिए कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अगर ए सी स्क्वायर के इक्वल आ जाए, देन दैट वन ऑफ द एंगल मस्ट बी 90 डिग्री. सो दैट वे आप ट्राइंगल को राइट ट्राइंगल भी जस्टिफाई कर सकते हैं. अब अगर हम बात करते हैं 4 साइडेड फिगर्स की, क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल के केस में चारों वर्टिसेस आपको गिवन होंगी. अब आपको सिर्फ फिर क्या चेक करना होगा, आफ्टर गेटिंग देयर साइड्स एंड आल्सो देयर डायगोनल्स, फिर हम रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम या रोम्बस बट नॉट अ स्क्वायर. सो इनकी ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपने 8th क्लास में पढ़ी हुई है एंड देन फर्दर 9th में यूज किया था. तो जस्ट रिकॉल what you did in class 8th and 9th, and accordingly you can apply the formula. I will share few questions जो इसके ऊपर based हैं, जो 10th में ही आप कर चुके हैं, but exam में 11th में they may or they may not come. ये नहीं है ना कि 11th में अगर हम कुछ चीज पढ़ा रहे हैं और 10th का कोई बेसिक चीज आ रही है तो that cannot be asked, and you must have experienced that in your UT2 examination. 2 क्वेश्चंस क्लास 10th के फॉर्मूला बेस्ड थे. Check out this question.
अगेन वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. रॉम्बस अगर दिखाना है, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ये दिखाना होगा आपको यहाँ पर. क्योंकि अगर ऑल साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो मैं उसको स्क्वायर भी तो मान सकता हूं, बट उसमें भी डायगोनल इक्वल दिखाने होंगे. तो रोम्बस, बट लैंग्वेज में क्या देंगे, रोम्बस बट नॉट अ स्क्वायर. तब क्लियर हो जाएगा कि आपको डायगोनल्स को भी अनइक्वल बताना है. एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फॉर योर होमवर्क, सेक्शन फॉर्मूला जस्ट फॉर योर होमवर्क, मिड पॉइंट, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन फार्मूला 10th में ही हो चुकी है. बिफोर वी मूव ऑन, एवरीवन मार्क योर अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स. Yes. Now I am going to introduce a very important concept referred to as a slope of a line, also as a gradient of a line. But ये जो टर्म मैंने अभी बोली है ना, ग्रेडियंट, ये CBSE में हम जनरली यूज नहीं करते हैं. ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन, this is in fact the inclination of the line actually. So check this out. Look at the first diagram. ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है. आपके पास कोई भी एक लाइन गई, ये लाइन, इस लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज क्या क्या टर्म यूज करी है. पॉजिटिव डायरेक्शन माने ये एंटी क्लॉकवाइज. अगर ये एंगल थीटा बनाया है, देन इस एंगल के tan को अगर मैं निकाल दूं, tan थीटा, that is actually referred to as the slope of a line. Let me repeat this again in a second diagram. Any line, ये कोई भी लाइन जा रही है. अब मैंने किस एंगल की बात करी है, ये याद रखिए. आई एम सेइंग पॉजिटिव डायरेक्शन, तो पॉजिटिव एंगल हमेशा नीचे से ऊपर एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं. तो इसने एक्स एक्सिस के साथ, इस लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर मैं देखूं तो ये वाला एंगल बनाया है थीटा. तो इस केस में दिस एंगल, इसका tan जो है वो इस लाइन का स्लोप कहलाएगा. कैन एनीवन टेल मी इन द फर्स्ट डायग्राम, आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, मतलब स्लोप इसका पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? थिंक लॉजिकली. थीटा एक्यूट है इस केस में, देखते ही पता चल रहा है. Positive. First Positive. quadrant slope will be positive. Of course, I am sure you have the answer for this diagram. Theta इस केस में Negative. clearly obtuse है, 90 से ग्रेटर है, माने सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है. इसका मतलब स्लोप नेगेटिव हो जाएगा if it is in the second quadrant. Can anyone tell me, अगर मान लो लाइन कुछ ऐसे जा रही होती, ये तो मैंने फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में बनाई है, अगर लाइन मेरी ये थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसे जा रही होती, इस लाइन का स्लोप क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव? Positive. Everyone think again. Note carefully.
ये लाइन अगर मैं एक्सटेंड करूंगा ये ऐसे जाएगी। अब इसने एंगल कौन सा बनाया है, ये बनाया है। देखते ही पता चल रहा है आई हैव टेकन दिस एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। 120 डिग्री हो सकता है, 110 हो सकता है, बट गारंटेड 90 डिग्री से तो ग्रेटर है। तो इस लाइन का स्लोप जो है नेगेटिव होगा। तो लुकिंग एट द लाइन आई कैन इवन टेल कि उसका स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो ये रिमार्क आप पढ़ लेना, सिंपल आइडिया है। तो एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन हमेशा वाई एक्सिस के कोई भी लाइन पैरेलल हो जाए। ऑब्लिक लाइन का मतलब नीदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस नॉर पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो स्लोप ऑलरेडी मैं डिफाइन कर चुका हूं। आपके पास m दिया हुआ है tan थीटा। तो थीटा अगर इंक्लिनेशन रहा है किसी भी नॉन वर्टिकल एंगल का, वर्टिकल के केस में सिचुएशन विल बी लिटिल बिट डिफरेंट। आई विल कम टू दैट। क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट इज द आंसर टू फर्स्ट पार्ट? 1. बेसिकली आपको tan 45 बताना था। व्हाट इज द आंसर इन द थर्ड पार्ट? Root 1 by root. ध्यान से भाई सभी और सोचो। दिस इज 180 minus 30. Isn't it the second quadrant where tan is negative? Minus 1 by root 3. और वैसे भी आपको बता दिया है if the angle is obtuse the slope will be always negative. Mute yourself, Ishu. Sorry. Yes, check out this. What is the inclination of a line whose slope is 0? फर्स्ट पार्ट ध्यान से सोचो, अगर m अगर 0 है, स्लोप 0 हो गया, लाइन एक्चुअल में कोइंसाइड मान सकते हैं या Constantly straight line. स्ट्रेट लाइन, इन फैक्ट दिस हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अगर स्लोप 0 है मींस लाइन इज एक्चुअली पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सेकेंड एंड थर्ड पार्ट तो चलो हो चुके हैं। कैन एनीवन टेल मी अबाउट दिस? स्लोप अनडिफाइंड कब होगा? चेक दिस आउट। Tan 90. When the line makes the angle of tan 90. tan 90, क्योंकि तभी तो वो अनडिफाइंड आएगा, और वो तभी पॉसिबल है when the line is parallel to y axis. So ये आपको एज अ रूल याद हो जाता है। If the line is parallel to x axis, slope is 0. If a line is parallel to y axis, slope is not defined. And diagram say this is self-explanatory. Slope of a line when coordinates of any 2 points on the line are given. Check this out. Look at this diagram. I am not going to the proof part. आपके पास ये 2 पॉइंट्स दिए हैं, पॉइंट P and Q. P and Q anywhere on this line. ये कोई भी लाइन जा रही थी। अच्छा, नॉट नेसेसरली फ्रॉम द ओरिजिन। ये बहुत ध्यान से देखिए, लाइन ये ओरिजिन से नहीं जा रही है, ओरिजिन से भी जा सकती थी, बट इट कैन गो फ्रॉम एनीवेयर। तो एनी लाइन इज गिवन। फॉर अ सेक ऑफ सिंप्लिसिटी डायग्राम में फर्स्ट क्वाड्रेंट लिया है। हार्डली मैटर अगर लाइन आपकी मान लीजिए कुछ मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की जगह ऐसे दिखा देता, इस लाइन के लिए भी फार्मूला सेम रहने वाला है। तो इफ 2 points are x1 y1 and x2 y2 on this line,
the slope of line is given by y2 minus y1 upon x2 minus x1. Learn this as a standard formula. बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्रू आउट हम इसे यूज करने वाले हैं. किसका स्लोप की हमने बात करी है? कोऑर्डिनेट्स आपको 2 पॉइंट्स के दिए हैं लाइन के ऊपर. धीरे धीरे हम ये एक्सिस बनानी बंद कर देंगे. ये लाइन है, मान लीजिए इसके ऊपर एक पॉइंट है 2,3 एंड B इज -1,7. तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ AB? एनीवन? y2 minus y1 over x minus x1. और वो क्या हो गया भाई? ऑब्वियसली ये x1 y1 लेंगे, ये हो गया x2 y2. तो y2 minus y1 upon x2 minus x1. 4 by -3 -4/3. अच्छा, ये लाइन एक्सिस के साथ राइट की तरफ झुकी होगी या लेफ्ट की तरफ? इसका इंक्लिनेशन एनीवन? ये एक्यूट एंगल बना रही है या ऑब्ट्यूज? ऑब्ट्यूज, क्योंकि स्लोप नेगेटिव आ गया है. अब आप एक्चुअल अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस में इन पॉइंट्स को ड्रॉ करके इमेजिन करो, 2,3 कहीं यहाँ रहा होगा, मान लो ये है, -1,7 कहीं यहाँ रहा होगा. आप जब इन्हें ज्वाइन करेंगे, आइडिया लग रहा है ना वही. ये अगर इसने एंगल बनाया था थीटा, तो इस लाइन का tan थीटा एक्चुअली रहा होगा -4/3. ये ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस, ये इमेजिनेशन बहुत जरूरी है अगर आप इस कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं. सो एक आंसर बस मुझे बता दीजिए, फर्स्ट पार्ट का ही. आई एम वेटिंग. -8/10. ओके, चलिए बाकी भी देखिए जरा. अब मैं ना लाइन बना रहा ना ही फॉर्मूला लिख रहा. y2 minus y1 upon x2 minus x1. So that would be -8/10. अगेन m नेगेटिव का सिग्निफिकेंस, ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है ये लाइन विद x एक्सिस. Your midterm exams will begin from most likely 18th of October और प्रैक्टिकल उससे पहले ही रहने का हो सकता है. तो प्लान अकॉर्डिंगली. एंड 9 to 12th एग्जाम्स ऑफलाइन में रहने वाले हैं. 10th and 12th तो कंफर्म है, और 9th and 11th के लिए भी, because government is planning for that and giving the permissions because the cases are almost zero, so the situation seems to be quite better. So इसीलिए वो ऑफलाइन में बिल्कुल आ सकता है. अगर गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है तो ऑफ कोर्स वी कैन नॉट डू एनीथिंग, बट इफ गवर्नमेंट परमिट्स फॉर द सेम देन इट विल बी ओनली ऑफलाइन. प्लीज रिमेंबर एंड मेक अ नोट ऑफ इट. एक रूम में 12 बच्चे बैठे होंगे, प्रॉपर प्रोटोकॉल, नॉर्म्स, एसओपी, एवरीथिंग विल बी फॉलोड, बट वी लेफ्ट विद नो ऑप्शन. तो उस केस में पूरे एक स्कूल में 25 रूम में सिर्फ 11th मैथ्स का एग्जाम हो रहा होगा. So that way we are planning. So you should always be ready and mentally prepare for that as well. Find the value of x so that inclination of this line joining the point this and this is 135 degree. आप चेक करिए, इंक्लिनेशन का मतलब आपको स्लोप ये
तो और वैसे मुझे पता, अच्छा tan 135 बता दो कितना होता है? -1. -1. -1 माइनस ऑफ tan 45. अब देखो ट्रिग्नोमेट्री प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अगर स्लोप ही गलत निकाला, मुझे ये वैल्यू ही नहीं निकालनी आती, आई कैन नॉट प्रोसीड फर्दर. और फिर मुझे पता है m तो किसके इक्वल था? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. और -1 इज यहाँ ये रहा x1 y1 x2 y2. Substitute the values and simplify. Your answer. Then you would be required to submit your activity files also physically. Already discussed the basic idea about this law. Now imagine a situation. If these two lines are there, L1 and L2, and check this out, if they are parallel, what does that mean? They are making the same angle. θ1 is equal to θ2 if they are parallel. और इसका मतलब tan θ1 will be tan θ2. और अगर पहली लाइन का स्लोप मैंने m1 कह दिया, दूसरी लाइन का स्लोप m2 था, तो we have a simple rule. If the lines are parallel, their slopes are equal. Converse is also true. If the slopes are equal, the given two lines must be parallel. ये तो रही पैरेलल लाइंस के स्लोप्स के बारे में. If two lines are perpendicular, so imagine this situation. ये लाइन L1 and L2 they are perpendicular to each other. L1 का स्लोप अगर है m1, L2 का स्लोप अगर है m2, in case of perpendicular lines, product of the slopes is always -1. Why is it so? बाद में मैं एक फॉर्मूला बताने वाला हूं बेसिकली, कि अगर मान लीजिए दो लाइंस जा रही हैं और ये एंगल अगर थीटा रहा था, पहली लाइन का स्लोप m1, दूसरे का स्लोप m2, देन tan theta is given by the formula m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. हम एक्यूट एंगल पे बात करेंगे, मॉड लगा देता हूं. सो इफ दिस फॉर्मूला इज से नॉन टू मी, ये आपको याद करना है, बाद में आने वाले वैसे डिटेल में. ये फॉर्मूला को अगर मैं ध्यान से देखूं, और अब अगर मैं पिछले केस की पहले बात करूं, पैरेलल के केस में, पैरेलल के केस में व्हाट विल हैपन अबाउट थीटा? इफ टू लाइंस आर पैरेलल, उनके बीच में एंगल तो 0 डिग्री हो जाएगा. उस केस में tan 0 डिग्री विल बी 0. ये वैल्यू 0 कब होगी? जब न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, और न्यूमरेटर 0 होने का मतलब m1 is equal to m2 as our condition. But if I am talking about perpendicular, if two lines are perpendicular, here clearly the angle will be 90 degree. tan 90 डिग्री हो गया उनके का स्लोप, और tan 90 तो होता है नॉट डिफाइंड. ये एक्सप्रेशन, ये फॉर्मूला कब नॉट डिफाइन होगा? जब नीचे 0 के इक्वल आ जाएगा, और m1 m2 should be -1. So please make a note of it, a very important condition. If two lines are perpendicular, product of their slopes is -1.
A very basic question, quick question. Show that the line joining these 2 points, मैं इन्हें अपने तरफ से लेबलिंग ए बी कह देता हूं, एंड दिस इज माय प्योरली रफ स्केच, कोई कोऑर्डिनेट पे बनाने की जरूरत नहीं है. इसका स्लोप निकाल देते हैं, क्योंकि देखिए अब आपको पैरेलल की बात करनी है. तो इसका स्लोप डायरेक्ट लिख दूंगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 1 प्लस 3 बाय माइनस 7, 4/7 आ गया. सिमिलरली अब अगर मैं बात करता हूं से सेकेंड लाइन, c इज 7 माइनस 1 ये, एंड दिस d इज से 0, 3. इसका स्लोप निकाल दिया क्लियरली, 4/-7 which is -4/7, and as we already have seen, if the slopes are equal, lines must be parallel. Since m1 is equal to m2, this imply AB is parallel to CD. Hence, सर लेकिन वो दोनों लाइन कोइंसाइड भी तो कर सकती है ना सर? दोनों लाइंस कोइंसाइड भी तो कर सकती है ना, दोनों के स्लोप तो तब भी सेम आएंगे. ऑब्वियसली, बट आप चेक करिए, इफ इवन कोइंसाइड लाइंस होती हैं, उनके भी तो स्लोप्स इक्वल होते हैं और उनको भी तो पैरेलल कहते हैं. टू कोइंसिडेंट लाइंस, मान लो एक ये लाइन है, एक इसी के ऊपर से ये लाइन निकल गई, तो दे आर ऑलवेज सेड टू बी कोइंसिडेंट और पैरेलल लाइंस. ओके सर. Check out the next question. A very simple and similar question. बस वही है, ऑर्डरिंग में है. अब यहाँ परपेंडिकुलर की बात करी है, ये और ये कह रहे हैं परपेंडिकुलर है लाइन जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स. तो बस बेटर रहेगा यू कॉल देम ए बी सी डी, और m1 इज डिफाइंड स्लोप ऑफ ए बी. What is the slope of AB? भाई B, please take participation in this. ये सिंपल चीजें हैं और आना चाहिए. Slope of m1 is 10/4, minus 10/4. So 10/-4, which is -5/2. m2 ऑफ कोर्स क्या आना चाहिए, कोई बता सकता है सॉल्व करे बिना कितना आना चाहिए? इट शुड बी 2/5. गुड, इट शुड बी 2/5. रीजन बीइंग, चलिए मैं ये -2/-5 एंड 2/5 प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स, क्योंकि -1 होना चाहिए, परपेंडिकुलर शो करना है, वो तो चलिए मैंने यहाँ ऐसे किया और ये आ गया -1. हेंस ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी. तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप एक चीज समझ पाए, इफ 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर, लिसन टू दिस सिंपल क्वेश्चन. ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी. ए बी का स्लोप गिवन है 2/3. व्हाट इज द स्लोप ऑफ सी डी? -3/2. It should be -3/2. रेसिप्रोकल करके साइन बदल दो, you will get the slope of next another line, क्योंकि उनका प्रोडक्ट -1 आना चाहिए. Without using Pythagoras theorem, show these 3 points are vertices of a right angle triangle. क्लियरली कह दिया कि पाइथागोरस नहीं लगानी, क्योंकि 10th का मेथड है मेरे पास. अब आप डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगा सकते. We will use slope. Yes, आप ए बी का स्लोप निकाल दो. एक ऐसे करिए, लेट मी कॉल दीज पॉइंट्स एज ए बी सी. अभी मुझे नहीं पता कौन सी लाइन किसके परपेंडिकुलर है,
तो मैं m1 कह देता हूं स्लोप ऑफ ए बी, m2 इज स्लोप ऑफ बी सी। हो सकता है मुझे m3 की जरूरत ही ना पड़े। सो व्हाट इज स्लोप ए बी का स्लोप? अब क्विक आंसर होते हैं। 1/. -1। बी सी पे फोकस करिए एवरीवन। ए सी का स्लोप देख लेते हैं हम जरा। चेक दिस आउट। अब मैंने क्या ऑब्जर्व किया, मेरा फोकस सिर्फ यहां गया। व्हाट डज दैट मीन? सिंस m1 क्रॉस m3 इज -1, दिस इम्प्लाई ए बी परपेंडिकुलर हो गया ए सी के, क्योंकि स्लोप इनके आए हैं प्रोडक्ट -1। अब अगर मैं रफ डायग्राम इमेजिन करूं, कैन यू टेल मी विच एंगल इज 90 डिग्री? So A. क्लियरली कॉमन जो लिखा गया है, तो एंगल ए एक्चुअली इस सिचुएशन में 90 डिग्री रहा होगा। अब आप एक्चुअल में इन पॉइंट्स को अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस में प्लॉट करते हैं, यू कैन इजीली विजुलाइज दैट। तो स्लोप से देखो कैलकुलेशंस हैज बिकम मच इजियर। डिस्टेंस फार्मूला लगाऊं, फिर कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लगाया जाए, हर चीज आपकी अब हट चुकी है। सो इसीलिए नाउ ऑन हम फोकस करने वाले हैं स्लोप के ऊपर सबसे ज्यादा। चेक आउट दिस क्वेश्चन, ऑलरेडी डिस्कस्ड आइडिया। देखिए जरा कैसे। Using slope, prove these 3 points are collinear। तो आप चेक करिए, इनकेस अगर मैं ये आप वही ए बी सी कह दिया, स्लोप ऑफ ए बी निकाल दिया, बी सी निकाल दिया एंड ए सी निकाल दिया, क्या होने वाला है? What will happen? Slope of any two should be equal to slope of sum of any two slopes should be equal to equal. No, do not confuse with the distance formula। तीनों स्लोप इक्वल आएंगे। आप चेक करिए, अगर मैंने कहा ये 3 पॉइंट्स कॉलिनियर है, मैं रफ स्केच बना रहा हूं। इफ दीज 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर, व्हाट अबाउट द स्लोप ऑफ ए बी? जो इसका स्लोप होगा वही तो कोइंसिडेंट लाइन का स्लोप होगा, और वही तो ए सी का एक्चुअल में स्लोप होने वाला है। तो आप स्लोप निकाल के देख लीजिए। इफ ऑल 3 स्लोप्स आर इक्वल एंड 3 लाइन्स हैं, चलो ए बी, बी सी, ए सी, स्लोप इक्वल है तो पैरेलल होंगी, जिनमें एक पॉइंट कॉमन है बी। ये तभी पॉसिबल है व्हेन दे आर कॉलिनियर। तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू बी सी, सुकेत बिल्कुल ठीक है। आपको ए सी का स्लोप निकालने की जरूरत ही नहीं है, दैट यू कैन वेरीफाई। वो इसलिए मैंने वेरिफिकेशन के लिए ये लिया था। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपने सिर्फ इतना करके दिखा दिया, इससे भी ये प्रूफ हो चुका है कि लाइंस मस्ट बी, सॉरी पॉइंट्स मस्ट बी कॉलिनियर। चलिए एवरीवन, मार्क योर अटेंडेंस। And here is the question for your homework। जो लास्ट क्वेश्चन में कंसेप्ट यूज हुआ है, पॉइंट्स आर कॉलिनियर, तो बस वो कंसेप्ट यूज कर लीजिए। एरिया को जीरो करके भी सॉल्व कर सकते हैं। बेस्ड ऑन दिस होमवर्क क्विकली बस देख लीजिए। 10.1 के स्टार्टिंग के क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, सेकंड थोड़ा सा लॉजिकल लग सकता है। So complete first 10 questions।
So exercise 10.1, first 10 questions in your homework. If you have marked your attendance, you can leave the class now. सर मुझे सर एक डाउट था सर, जो फर्स्ट चैप्टर है सर, उसमें सर पोलर फॉर्म कट गई है ना सर? Yes, polar form is not in the syllabus. सर एक बार सर आप मुझे सर जो डिलीटेड सिलेबस है सर एक बार सर वो ग्रुप पे एक बार सेंड कर दो क्या प्लीज? चेक आउट द पीडीएफ्स ऑल्सो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही सब सिलेबस है, उसके अलावा जो नहीं है वो नहीं होगा, क्योंकि कुछ चीजें अगर डिलीट में 1% रही हैं और वो पहले हम कर चुके हैं तो दैट इज कवर्ड। तो मैं वो वाला डिलीटेड जो सीबीएसई का है 100% फॉलो नहीं हो सकता है, आई कैन नॉट शेयर दैट। तो यू नीड टू चेक आउट वट एवर इज बीइंग टॉट इन द क्लासरूम, ऑल द पीडीएफ्स आर अवेलेबल, तो उन्हें आप चेक करिए। पोलर फॉर्म एंड कॉम्प्लेक्स रूट जो है, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो डिलीटेड है। ओके सर। या चलिए, एंडिंग द क्लास, एवरीवन प्लीज लीव इट नाउ। Excuse me, sir. थैंक यस, यू सर, बाय सर। ओके।